Hi everyone, welcome you all in data structure and algorithm course. In this video lecture you will learn how to code for linear search technique. In previous video lecture I have implemented how to swap two values and how to code for finding student information using a structure. So first I will tell about course outcome of this content. So this program or this experiment comes under course outcome 2 as per syllabus. So course outcome 2 says apply searching, sorting and hashing techniques to solve a real world problem. So we have to use searching technique to solve real world problem. So friends, first you will have to understand the concept of searching techniques. What is the meaning of searching? तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा. सो आई एम रजनीश कुमार रंजन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल. इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट then of course this will come under, if I am talking about learning level, psychomotor, cognitive and affective also, because you have to code and after getting some output you will feel very good. That's the reason I have taken all the learning level and topic is nothing but searching techniques. So as per the syllabus I will explain linear search and binary search, but in this particular video lecture I am going to explain linear search and I will implement linear search techniques. So I am going to move on the next slide. So here we have some important point related to linear search, but before that I want to say about searching means. तो searching का मतलब क्या होता है? Suppose that you have to search particular item from your house, or you have to find any particular bag from your classroom. Then you will have to search. How do you search? This is based on the algorithm or this is based on you, कि आप पे डिपेंड करता है कैसे आप सर्च करेंगे. तो एक क्या हुआ कि you will start from the first bag and you will move on the second bag. If particular bag, if you find particular bag जो आपको चाहिए था, then इसका मतलब क्या है कि आपने उस particular bag को find out किया and you will say yes, particular bag exists in this classroom. तो एक तरीका हुआ कि आप फर्स्ट बैग से स्टार्ट करें और लास्ट तक आप सर्च करेंगे. यदि लास्ट आइटम और लास्ट बैग भी आप सर्च किया एंड यू डिडंट गेट जो आपको बैग चाहिए था, देन यू विल से दैट बैग डोंट एग्जिस्ट इन दिस क्लासरूम. तो एक सिंपल एग्जांपल है. अब सर्चिंग का एक और टेक्निक क्या होगा? बाइनरी सर्च. दैट इज मच इफिशिएंट देन लिनियर सर्च, बट आई विल टेल अबाउट दैट टेक्निक लेटर ऑन. सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च, because you are following the sequence. You will have to start from the first and you will move towards the last. And this is the most basic and easiest searching technique. This technique is used when items are not sorted or sorted. मतलब ये linear search technique जो है इसका ये एक एडवांटेज है कि आइटम जो है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता. आपको लिनियरली सर्च करना है. सो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आइटम. बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, यदि किसी भी ऑर्डर में डेटा आइटम होगा देन दैट एल्गोरिथम विल नॉट गिव द रिजल्ट. मतलब क्या है कि बाइनरी सर्च टेक्निक आप यदि लगा रहे हैं किसी आइटम को सर्च करने के लिए, देन डेटा आइटम मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लीनियर सर्च कि डेटा आइटम को सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे अब इसमें होता क्या है कि आपको हर आइटम को फ्रॉम द बिगिनिंग यू विल हैव टू कंपेयर टू फाइंड द रिलेवेंट आइटम. यदि हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की, और अदर आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो यू हैव टू चेक ऑल द डेटा आइटम टू सर्च पार्टिकुलर आइटम. वो आइटम फर्स्ट आइटम भी हो सकता है, जो रिक्वायर्ड आइटम है, आपको जो रिक्वायर्ड डेटा को सर्च करना हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको मिल जाए, हो सकता है कि मिडिल पोजीशन पे मिले, और हो सकता है कि लास्ट आइटम आपका पार्टिकुलर डेटा है. तो इसका मतलब क्या है कि आपको वर्स्ट केस में यदि आप देखें तो सारे आइटम को सर्च करते हुए आपको लास्ट आइटम ही आपको मिल पाएगा.
जो कि रिलेवेंट है। इसका मतलब है कि जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n होगा। यदि बेस्ट केस की हम बात करें तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम है, मतलब फर्स्ट आइटम विल बी योर रिलेवेंट आइटम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो हियर वी हैव डेटा आइटम्स 10, 56, 75, 28, 49, 8 एंड 89। तो ये एरे में डेटा स्टोर है। जब एरे में है तो हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे, सो 0 से 6 तक इंडेक्स। अब हम सपोज दैट कि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर आइटम को सर्च करना है तो लीनियर सर्च से हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू कंपेयर द डेटा आइटम ऑन ईच इंडेक्स। तो सपोज हमें यहाँ पे की जो है 28, की का मतलब क्या हो कि 28 हमें फाइंड आउट करना है कि 28 एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आइटम, और कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट आइटम से और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे देख पा रहे हैं कि 10 है, सो 10 इज नॉट इक्वल टू 28, सो इट विल मूव ऑन द नेक्स्ट इंडेक्स। सो नेक्स्ट इंडेक्स पे 56 है, तो 56 पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 28 के इक्वल नहीं है, वी हैव टू सर्च 28। तो हम लोग हमेशा की आइटम से कंपेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 75 है, तो 75 इज ऑल्सो नॉट 28। नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे मूव करेंगे, सो दिस इज 28। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पोजीशन पे 28 जो हमें रिक्वायर्ड डेटा था और रिलेवेंट डेटा हमारा 28 है, तो 28 इस स्ट्रक्चर और इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आगे सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको पार्टिकुलर आइटम को सर्च करके बताना है कि इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, सो आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ब्रेक कीवर्ड यूज करें एंड फाइनली यू विल ब्रेक द लूप और यू विल कम आउट ऑफ द लूप। सो यू कैन यूज आइदर फॉर लूप, while लूप और do while loop for executing such code. So I am going to give you the proper code of linear search and I will explain each line. So here we have code for linear search. So first you have to include a standard library or a standard input output header file to displaying the data item. Either you are reading using the scanf and printing using printf function, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। एंड हेयर मेन, तो मेन के साथ हमने इंटीजर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इज इंटीजर। यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड, तो वर्ड यदि यूज करेंगे तो रिटर्न टाइप में कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल इंटीजर टाइप लिया है, वन इज की एंड अनदर इज आई। एंड हेयर एरे में कुछ आइटम हमने इनिशियलाइज कर दिया। यू कैन टेक ऑल द डेटा आइटम एज पर योर रिक्वायरमेंट, और यूजर के थ्रू भी आप डेटा आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टोटल 8 डेटा आइटम्स एंड यहाँ पे हमने बताया है कि यू हैव टू फाइंड 30। सो 30 जो एलिमेंट आइटम नंबर 30 है, 30 को सर्च करना है। सो यू विल हैव टू टेक सिंपल लूप। तो फॉर लूप कहाँ से चलेगा, i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन लास्ट इंडेक्स पोजीशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक सर्च करेगा। दैट इज द रीजन हियर वी हैव टेकन i लेस देन 8। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ ai इज इक्वल टू की, तो i का वैल्यू अभी क्या है 0, तो a0 का वैल्यू क्या होगा 18। 18 इज इक्वल टू की नो, जब a इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, इसी लूप में आगे जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस कोड को आप समझने की कोशिश करें। यदि आइटम इक्वल नहीं है तो सीधे i का वैल्यू क्या होगा, आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। सो i का वैल्यू हो जाएगा 1, 1 लेस देन 8 यस। तो a1 का वैल्यू क्या है 28 एंड वी हैव टू सर्च 30। सो 28 इक्वल टू 30 नो। सो वंस अगेन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा, 53 होगा, तो 53 नॉट इक्वल टू 30। वंस अगेन इट विल मूव ऑन द नेक्स्ट आइटम। तो इस तरह से कंपेयर i का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा एंड 30 इस इंडेक्स पे जैसे ही जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ai इज इक्वल टू 30 या 30 इक्वल टू की। इस केस में जब कंडीशन मैच हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, आइटम %d प्रेजेंट एट इंडेक्स पोजीशन। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडेक्स पोजीशन को भी बता रहे हैं किस इंडेक्स पोजीशन पे रिक्वायर्ड आइटम प्रेजेंट था। उसके बाद हमने ब्रेक
कि यहाँ पे यूज किया। इसका मतलब क्या कि आगे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से इस कोड को हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी अराइज होगा, इंस्टेड ऑफ 30 सपोज दैट वी हैव टू सर्च 99 बट 99 नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आइटम से सर्च करते करते लास्ट आइटम तक पहुंचेगा एंड इन दैट सिचुएशन 99 विल नॉट फाउंड। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग चेक करें कि आई का वैल्यू लास्ट इंडेक्स के बाद भी बाहर चला गया है क्या। यदि जैसे ही हमारा वैल्यू 7 तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं था। तो आई का वैल्यू यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है, 7 है। यू कैन काउंट दिस इज 0 एंड दिस इज एट पोजीशन इंडेक्स नंबर 7। तो 7 तक एग्जीक्यूट होगा स्मूथली। यदि फाइंड आउट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि फिर से आई का वैल्यू बढ़कर के 8 होगा एंड 8 होते ही कंडीशन क्या होगा, लूप का फॉल्स होगा। तो लूप कंडीशन से बाहर आएगा और हम लोग जैसे ही फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे कि आई का वैल्यू 8 हो गया है, 8 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आइटम इसमें प्रेजेंट नहीं था। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन डिस्प्ले सिंपल मैसेज कि आइटम इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द कोड फॉर लीनियर सर्च एंड आई हैव इंसर्टेड हियर a snapshot of this program. I am going to execute this code on C compiler. Either you can use dev C++ compiler, CodeBlock or any other compiler like Turbo C. So here I am going to execute this code on dev C++. See here, I have copied and pasted the same code. Let me execute this code. So first I am going to compile. So here we have 0 errors and 0 warnings and compilation time is nothing but 0.88 second and let me run this code. So item 30 present at index position 6. But for example, suppose that we have to search item number 41. Then इस सिचुएशन में क्या होगा कि 41 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो भी रिटर्न करेगा। So let me compile this code and run this code. तो इंडेक्स पोजीशन 7 पे बता रहा है कि आइटम 41 प्रेजेंट एट इंडेक्स पोजीशन 7. यू कैन काउंट ऑल्सो. सो 0 1 2 सॉरी actually I have taken here I plus 1. So if you are printing index, so you will simply take I, control S, because you are starting from 0. This is not index position. index position का मतलब क्या होगा, I होगा. I plus 1 का मतलब उस पोजीशन पे. तो अब हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि 41 का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6. तो 6 आना चाहिए इंडेक्स पोजीशन. सो लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस कोड. सो इंडेक्स पोजीशन 6 एंड I want to check for another data item, suppose 99, but 99 is not present in this list or this array. तो इस केस में क्या होना चाहिए, item %d not found, ये प्रिंट होना चाहिए. So let me compile this code. So once again we have 0 errors and 0 warning and run this code. So item 99 not found. So this is the very simple code for linear search. In next experiment we will execute or we will understand the concept of binary search. I want to share one thing. This course is very important for your career. You must code on your PCs or mobile phone or any another devices. If you do code, then it means that you are in a good practice. If you want a good job, then coding is compulsory and at least concept is compulsory to know. In interview you will be asked such questions. What is the difference between linear search, binary search और इंडेक्स सर्च. सो आपको कोडिंग में प्रैक्टिस और कोडिंग करना चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड हेल्पफुल फॉर यू इफ यू वांट placement in a good company like Microsoft, Amazon. Then of course you must know how to code in efficient way. Hope you understand the linear search, and in next video lecture we will meet with binary search implementation. Hope you understand. Thank you so much.